Good morning, children. Today we will start the new chapter, lesson 8, cell, structure and functions. And we, in our surroundings, that there are living and non-living things, and we can easily differentiate between them because living things have some special characteristics and the basic functions which happen in their body, and these functions do not happen in the non-living things, so we can identify. So one characteristics is the cellular organization. It means living things are made up of a small unit that is known as cell. So in this chapter we will discuss about the cell. So living things do some special some basic functions like digestion, nutrition, respiration, excretion. Okay, so these are the characteristics of the living things, movement also, growth also. So now see in the para, different sets of organs perform the various functions you have listed. It means I told you about these functions like digestion, excretion, respiration. Okay, so these functions happens in the living things. So the basic unit of the living thing is cell. It means the body of the living things is made up of the cell, and these cells combine and make the tissue, and tissue combine and make the organs, and organs combine and make the system. So the basic structure unit of an organ, which is the cell. So cell may be compared to bricks. Bricks are assembled to make a building, and similarly cells are assembled to make the body of every organism. Here the example is given how the body of the living organism is made up of. So a small basic unit is known as cell, and cell we compare its cell to the brick. इस सेल को हमने किससे कंपेयर किया? ब्रिक से. ब्रिक क्या होती है? ईंट. तो जब भी कोई हम वॉल बनाते हैं, वॉल बनती है, तो उसमें छोटी छोटी ईंटों को लगा करके ही एक वॉल को सीमेंटेड करके वॉल बन जाती है. तो सेम ऐसे ही जो हमारी बॉडी है, लिविंग थिंग्स की जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, दैट इज़ मेड अप ऑफ अ स्मॉल यूनिट, दैट इज़ सेल. सो सिमिलर सेल मिलकर के बनाते हैं टिश्यू, एंड सिमिलर टिश्यू मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? सिस्टम. और एक सिस्टम, एक पर्टिकुलर सिस्टम बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है. नाउ द डिस्कवरी ऑफ द सेल. Who discovered the first, who saw the cell first time? So that the scientist is Robert Hooke. He observed in 1665 the slices of the cork under a simple magnifying device. तो पहले माइक्रोस्कोप इतना स्ट्रेंथ वाला नहीं था, पावर वाला नहीं था, तो सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे कॉर्क की स्लाइसेस के टुकड़ों को देखा. कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. और कॉर्क क्या है? इट इज़ द बार्क ऑफ द ट्री. जो ट्री की छाल होती है उसे क्या कहते हैं? बार्क. तो बार्क का ही एक पार्ट है. ही टुक देम स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप. तो उन्होंने एक स्लाइस लिया, कॉर्क लिया, छाल ली उसकी ड्राई वाली, और उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा. ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस. तो उनको छोटे छोटे ब्लॉक से दिखाई दिए, कंपार्टमेंट. ओके, छोटे छोटे बॉक्सेस जैसे कि छेद होते हैं, बीहाइव में देखा है इस तरीके के छोटे छोटे होल्स, कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए. See in the picture you can easily observe the holes. Okay, these compartments in the cork cell. These boxes appeared like a honeycomb. Beehive बताया था. Beehive जो मधुमक्खी का छाता होता है जिसमें हनी स्टोर करती है, तो सेम इसी को रिजेंबल करता है. ये बॉक्सेस उसी की तरह दिखाई दे रहे थे. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. और हर एक कंपार्टमेंट, छोटे छोटे जो होल्स दिखाई दे रहे थे, कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे थे, बॉक्सेस दिखाई दे रहे थे, दे आर सेपरेटेड टू ईच अदर बाय द वॉल. वो एक वॉल से अलग हो रखे थे. हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स. तो रॉबर्ट हुक ने उस हर एक बॉक्स को, यानी कि जो छोटा बॉक्स होल दिखाई दे रहा था, कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा था, उसको उन्होंने सेल कहा. व्हाट
हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स। तो क्योंकि उन्होंने बार्क ली थी तो ये जो इन्होंने देखा सेल को, दैट इज़ द डेड सेल, वो डेड थी, इसीलिए इनको इसमें क्या दिखाई दिया, खाली दिखाई दिए कंपार्टमेंट, बॉक्सेस दिखाई दिए, कुछ भी नज़र नहीं आया उसके अंदर। बट एक्चुअल में अगर हम लिविंग सेल को देखते हैं तो हमें उसमें अदर स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देते हैं। साइटोप्लाज्म दिखाई देता है, न्यूक्लियस दिखाई देता है, सम अदर बॉडीज़ जो है उसमें फ्लोट करती रहती हैं। सो इसको बिल्कुल ब्लैंक और इस तरीके से खाली होल्स इसलिए दिखाई दिए बिकॉज दैट कॉर्क सेल इज द डेड, वॉज द डेड। Cells of living organism could be observed only after the discovery of improved microscopes. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स ऑब्जर्व किए गए वो जब माइक्रोस्कोप और इम्प्रूव हुआ, बिल्कुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप बने, तब अच्छे से इसको ऑब्जर्व किया गया। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स अबाउट आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। और जब रॉबर्ट हुक ने इस ऑब्जर्वेशन किया ये, उसके बहुत टाइम बाद ही सेल के बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिला। टुडेज वी नो अ लॉट अबाउट सेल्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। लेकिन आजकल हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कि किस टाइप का सेल का स्ट्रक्चर होता है और किस टाइप की सेल है, उसकी शेप क्या है और एक कौन सी पर्टिकुलर वो सेल है और उसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम अब जान सकते हैं। क्योंकि अब जो माइक्रोस्कोप हैं वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं और ज़्यादा मैग्नीफाइंग के हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो हम उसको ईज़िली उसकी स्टडी कर करके और अब हम उसके बारे में और नॉलेज बढ़ गई है। नाउ अबाउट द सेल्स। Both bricks in a building and cells in the living organism are basic structural unit. अभी आपको बताया था, कंपेयर किया था कि बिल्डिंग किससे बनी हुई है, ब्रिक्स से बनी हुई है। सेम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी है। सो इन केस ऑफ बिल्डिंग एंड इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म द बेसिक यूनिट इज द बोथ आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके, सो बिल्डिंग की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज़ द ब्रिक, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज़ द सेल। द बिल्डिंग थ्रू बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइन, शेप्स एंड साइज। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। अभी आपको ये बता रहे हैं कि बिल्डिंग के अंदर हम जब बनाते हैं तो सिमिलर ब्रिक्स होती हैं, फिर चाहे डिज़ाइन जो भी हमने बिल्डिंग बनाई है उसका डिज़ाइन अलग होता है, शेप अलग होती है, साइज़ अलग होता है। सेम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी डिफ़र हैं, अलग अलग हैं, बट उनकी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, सेल्स से। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। तो ये तो हम सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं बताने के लिए कि दैट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, बट सेल्स की जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिक्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स की जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट बता रहे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। लिविंग थिंग की जो सेल्स का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स। नाउ सी द पिक्चर ऑफ द ब्रिक वॉल एंड ऑनियन पील। ब्रिक वॉल इज़ द नॉन लिविंग, ओके, एंड ऑनियन पील इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट। ऑनियन मतलब प्याज की एक छिलका लेके उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा गया है तो उनकी सेल्स जो है आपको क्लियरली इसमें ऑब्जर्व हो रही है, इनका स्ट्रक्चर आपको ऑब्जर्व हो रहा है। ओके, सो ऑनियन पील का स्ट्रक्चर बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू द ब्रिक वॉल। द एग ऑफ अ hen represent a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye. जो hen का एग होता है ना दैट इज़ द सिंगल सेल, वो एक सेल ही है, हम ये नहीं कहेंगे कि उसके अंदर और सेल है, दैट इज़ द ओनली सिंगल सेल एंड वी कैन, और इतना बड़ा है वी कैन ईजली थ्रू अवर आइज़, हमें अपनी आंखों से आसानी से दिखाई दे जाता है, हमें उसमें को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ऑनियन पील का हमने देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वी कांट एबल टू सी अवर नेकेड आइज़, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का। बट एग सेल, हेन का जो एग सेल है दैट एग इज़ द सिंगल सेल एंड वी कैन ईजली ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ द साइज इज़ बिग। इसका जो सेल है उसकी बिग साइज़ है तो हम आसानी से देख लेते हैं। आफ्टर दैन ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज।
जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो सेल्स हैं उनकी जो संख्या है वो भी अलग अलग है, वैरायटी मिलती है, शेप अलग होती है, साइज अलग होता है। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? दे यूज माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स. स्टेन्स, डाइज आर यूज्ड टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर. साइंटिस्ट कैसे स्टडी करते हैं सेल की? तो सबसे पहले वो सेल की एक स्लाइड बनाते हैं और उसको फिर अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं. सेल मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट मतलब जो भी सेल बनाई है उसको पहले मैग्नीफाई करने के लिए स्लाइड बनानी पड़ेगी. तो स्लाइड के लिए पहले सेल लेंगे, उसको एक ग्लास स्लैब पे रखेंगे, उसको स्टेन करेंगे, डाई करेंगे और फिर उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे कवर स्लिप लगाकर. There are millions of living organisms. They are different shapes and size. Their organs also vary in shape, size and number of cells. So यहाँ पर हमारी जो अर्थ है वहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मिलियंस, और उन सब की जो जब उनकी बॉडी जो सेल से बनी हुई है दे हैव द डिफरेंट शेप, साइज एंड नंबर ऑफ द सेल्स इन द लिविंग बॉडी. तो उन सब के अंदर अलग अलग नंबर है, शेप है एंड साइज है. So first we discuss about the number of cells. Can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the elephant? The number runs into billions and trillions. Human body has trillions of cells which vary in shape and size, and different group of cells perform a variety of functions. अब इसमें एग्जांपल गिवन है कि टॉल ट्री का और एक ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट, इसके जो सेल्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, बिलियंस, ट्राइलियंस. ऐसे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ट्राइलियन सेल्स हैं जिनका जो शेप है, साइज़ है, दे आर डिफरेंट, अलग अलग है, सब डिफरेंट है. और हर एक डिफरेंट जो सेल्स का जो ग्रुप है उनका अपना अपना फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन होगा. अब बिलियन इज़ 1000 मिलियन. बिलियन कितना होता है? 1000 मिलियन. मिलियन का जो 1000 है दैट इज़ अ बिलियन एंड ट्राइलियन इज़ 1000 बिलियन. सो सोचो कितनी सेल्स होंगी लिविंग ऑर्गेनिज्म में. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेलुलर, इट मीन्स यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो हियर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज गिवन दैट ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ more than one cell are called multicellular. Multi means many and cellular means cell. It means organism made up of more than one cell. It means उनकी बॉडी एक सेल से ज़्यादा की बनी हुई है और हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन होता है. इसीलिए बॉडी के अंदर टिश्यूज़ बन के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं और पर्टिकुलर सिस्टम का अपना अपना फंक्शन होता है. लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ओके, स्केलेटल सिस्टम, ऑल दीज आर द हैव द डिफरेंट फंक्शन. सो दिस इज़ इन multicellular organism. After then there are also another type of organism are found, that is single cellular or unicellular organism whose body is made up of only one cell. उनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है और उनका फंक्शन जो है जितना भी मैंने अभी बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शन होते हैं, बेसिक फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन का, ओके, और जो भी फंक्शन हो रहा है, मूवमेंट का हो रहा है, तो वो सिर्फ जो उसके जो सिंगल सेल है ना, दैट परफॉर्म, ओनली दैट सिंगल सेल परफॉर्म दीज फंक्शंस. ओके, सो वही सिंगल सेल में सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. सो वी विल सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल्स बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज़ द फर्टिलाइज्ड egg, and the fertilized egg cell multiplies and the number of cells increase as development proceeds. तो हमें ये सरप्राइज़ होगा जान के कि जितनी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जब वो अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं तो वो सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है, जिसे क्या बोला जाता है? फर्टिलाइज्ड एग. तो जो फर्टिलाइज्ड एग है दैट इज़ द सिंगल सेल. उसमें डिविजन्स होते हैं, वो सेल्स मल्टीप्लाई होती हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद ही वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होती है सेल, ओके, बॉडी, और तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो करता है. लुक हियर,
in both picture A and B, both organisms are made up of a single cell, and these are single cell organism are called unicellular. I already told you that unicellular organism body is made up of only one cell, and that only one cell is perform the all functions. So here the picture is the picture of amoeba and paramecium. These are the unicellular organism, hold the functions like excretion, digestion, okay, movement, these done by this single cell. Uni means one and cellular means cell, so these are unicellular organism. A single cell organism perform all the necessary functions that मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म. तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेम फंक्शन होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, क्योंकि दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं. बट सिंगल सेल अपना सिर्फ सारे फंक्शन एक ही सेल से करेगी, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम होगा, और उसी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं. अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर्स, एक्सक्रीट, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस. जो हम अभी लिविंग थिंग हमने अभी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा अमीबा, दिस इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एंड इट कैप्चर द फूड एंड डाइजेस्ट फूड. तो जिसकी जो ये सेल है ना, ये स्यूडोपोडिया क्रिएट करके और फूड को कैप्चर कर लेती है, डाइजेस्ट करता है, रेस्पिरेशन भी होता है इसमें, एक्सक्रीशन भी इसी सेल के थ्रू होता है, ग्रो भी करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है. इसी के थ्रू नए इंडिविजुअल्स भी बनते हैं. सो ऑल द फंक्शंस परफॉर्म बाय दिस सिंगल सेल. Similar functions in multicellular organism are carried out by groups of specialized cell forming different tissues. Tissues in turn form organs. तो सेम ऐसे फंक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनके लिए स्पेशलाइज्ड सेल जो है वो ग्रुप में वर्क करती हैं, जो टिश्यू बनाते हैं. टिश्यू ऑर्गन बनाएंगे और ऑर्गन क्या बनाएंगे, सिस्टम. तो पर्टिकुलर सिस्टम का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. सो चिल्ड्रन, दिस इज टुडेज टॉपिक. रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक, ओके, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी सो ask we will discuss in the live class. Thank you.